Hello, welcome or welcome back to the channel. Myself, Prapti Jaiswal, and I welcome you all to Prapti's Holistic Homeo. I know that it's been very long time. I have not posted anything, and I have received comments of y'all that why are you not consistent or not uploading the videos. And I have realized that one thing. ये चीज तुमने बहुत मुझे बोल दी कि I have not posted videos. मैं पिछले बार की तरह गायब मत हो जाना. But the thing is that I feel it gets very one way communication, because even after putting so much of time, energy and effort, when you don't get the feedback or when you don't get the reply from that side ki okay, how it is going or where it is leading, or is it helping you or not. I know I receive good comments also, and I'm very thankful to all of you all who comment such beautiful long messages on Instagram also. Thank you so much for that. But still जितनी एनर्जी और एफर्ट उसमें लगती है उतना वो मतलब आई एम नॉट सीकिंग एनीथिंग, बट द थिंग इज दैट वो motivation. The thing is about that getting that motivation to get that spike. But any which ways we are here and we will continuing with this because हाँ बहुत टाइम हो गया हमने कुछ डाला नहीं था, and अब मेरी एग्जाम्स एंड सारा मेरा breakdown everything has happened. Now we are back. So without wasting more time of us, we will just start with the microbiology. And so this is just the introductory video of how we will be studying the microbiology, and what are the steps to study, and what all are the things which we have to study. So this is just the introductory video for microbiology. And also I wanted to interact ki why I have not been posting. So please comment कर दिया करो जो भी तुम्हें मन है, जो भी तुम्हें फील हुआ वो देख के. It may be sometimes negative or it may be neutral or anything, so that I get कि अच्छा ठीक है कम से कम वो two way तो है. So that was it, so that I get the motivation. That is the only thing required. And और ऐसी बहुत सारी चीजें which we will be talking in the रॉ वीडियोस जहां पर सिर्फ हम बात कर रहे होंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल जस्ट सी द माइक्रोबायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली, एंड माइक्रोबायोलॉजी है क्या. तो ये तुम्हारे सेकेंड ईयर में BHMS का सब्जेक्ट है जिसमें 100 मार्क्स का इस पे क्वेश्चन आने मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा, एंड वी हैव टू स्टडी. एंड इट इज मोर अबाउट द लर्निंग द थिंग्स. वी यू विल हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स. एंड okay, concept is there, but 70% is everything which you have to learn everything. So इसके लिए ये थोड़ा सा लोग बोरिंग लगता है लोगों को, बट इफ यू विल अंडरस्टैंड इट, जो हमें हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं हुआ है, सो आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग मे बी. So along with pathology, we will be having microbiology for 100 marks. So total 200 marks, 100 marks pathology and 100 marks microbiology will be there. So what all we have to study and what is microbiology, we will be covering in this. So what is microbiology? If you know, let me know in the comment section, and if you don't know, I will tell you what is microbiology. So the study of microorganisms. तो जो भी ऐसे छोटे छोटे microorganisms होते हैं which causes infection in a body and that leads to producing a disease in a body. So जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके वजह से डिजीज होता है, तो स्टडी ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ओके, तो ये माइक्रोबायोलॉजी होती है जो हमें अभी पढ़नी पड़ेगी. और माइक्रोबायोलॉजी में जो भी मैंने बोला जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरोलॉजी, फंगाई. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टाइनी और इतने छोटे होते हैं कि हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप्स के अंडर देखना पड़ता है. सो विदाउट microscope we cannot study about these things. Then there are some good bacterias and bad bacterias जो हमारे body में present होते हैं. Like of course the bad one will produce disease and the good ones are there जो हमारे body में present होते हैं and that are important. So you know, and that are very normal to have in human body. So वो भी हम पढ़ रहे होंगे. Then उसके बाद branches होती है microbiology की, like bacteriology, virology, parasitology. We will be studying in this. Okay, तो ये सारे जो तुम topics देख पा रहे हो ये सारा हमको include करना है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट आता है. इंट्रोडक्टरी में ऑल द बेसिक थिंग्स वी विल हैव टू स्टडी, लाइक द डेफिनेशंस. देन वी हैव टू स्टडी कोर्स पोस्टुलेट. जैसे कोर्स पोस्टुलेट में क्या होता है, जैसे कि वी हैव ड्रग प्रूविंग. In homeopathy, it's just like that, keep proving of parasites and how it produces disease, that we have to include in, we have to study in course postulate. Then we have role of normal human microbiota. As I said, there are good bacteria and bad bacteria, or good microbes and bad microbes. तो वो उसमें आता है नॉर्मल में जो कि गुड होता है. देन उसके बाद स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता ही है एग्जाम में. देन उसके बाद
we will be studying all the branches. Then उसके बाद जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी में we will be studying the positive and negative bacteria, वायरोलॉजी में we will be studying the वायरोलॉजीज. जब हम ये पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे कि बैक्टीरियाज के अंदर कौन से बैक्टीरियाज पढ़ना है, वायरोलॉजी के कौन से अंदर वायरोलॉजी पढ़नी है, एंड कौन से पैरासाइटोलॉजी में कौन से पैरासाइट्स एंड हेलमिंथ्स पढ़ना है. तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से. तो नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पर आएगा, और जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा जो हमें माइक्रो बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सेकंड ईयर बीएचएमएस एंड फॉर आवर नॉलेज पर्पस ऑल्सो, तो वो खत्म करने के बाद हम तुरंत जाएंगे बैक्टीरियोलॉजी पे. और बैक्टीरियोलॉजी पे जाने के बाद हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरियाज जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो बेसिकली ये उसी के आसपास घूम रहा है. बस ये माइक्रोबायोलॉजी जो बहुत माइक्रोस्कोप के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टडी हम कर रहे होंगे. फिर जैसे कि इसे स्टडी करने के लिए हमें, ये बहुत छोटे होते हैं तो हमें ना दिखाई नहीं देते, तो ये हमें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करने पड़ते हैं. तो उसके लिए हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो वो सारे मेथड्स हम इंट्रोडक्टरी वाले टॉपिक के कल्चरल मीडिया एंड कल्चरल मेथड्स में देखेंगे. जैसे कि ग्राम स्टेनिंग हो गई, वो भी हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है, और वो स्टेनिंग करने के बाद हमें वो दिखाई देते हैं. एंड टू स्टडी कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी, एंड वो हम तब देख रहे होंगे. सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. और ऐसे मैंने सोचा कि ठीक है चलो जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं एंड डाल देते हैं और एक अपडेट दे देते हैं. सो जस्ट एक 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 मैसेज या एक कुछ तो भी कमेंट या anything which plays role as motivating me, you can surely do that, and I hope to make something good. And तुम बता सकते हो, एंड अगर वो मुझसे होगा सो आई विल ट्राई टू डू दैट. बस दैट इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड let me know your feedback and what all do you expect. And what I want is that I don't know, I feel that BHMS is lacking, and the student of BHMS itself are not very cooperating with the people who are trying to go somewhere else. And this, I am not talking about me, I am to nowhere, my scale is very at the बहुत बहुत छोटा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग लार्जर स्केल्स ऑल्सो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग, दे आर जस्ट द कंज्यूमर, बट दे आर नॉट गिविंग द फीडबैक, और दे आर नॉट अपलिफ्टिंग द BHMS पीपल, लाइक द वन हु आर ट्राइंग टू कम अप. सो ऐसा मत करो. एंड मेरा एम है कि मैं BHMS को और हम एज अ BHMS स्टूडेंट एक सही और आगे जगह पे जा पाए. एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट brand ambassador of BHMS or anything like that. But the thing is that even I realize this thing, and even I am working on that as a student कि मैं भी खुद अपनी knowledge enhance करूँ. तुम्हारे साथ ही मैं भी कर रही होंगी. And yeah, that is it. Thank you for watching.